کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے دوسری شادی کر لی ہے، مگر اب دونوں بیویوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بچے بھی در بدر ہو گئے، میں بھی پاگل سا ہو گیا ہوں۔ دیکھو، پاگل کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پاگل ہوں، یہ یاد رکھو۔ پاگل کبھی بھی نہیں کہے گا میں کیا ہو گیا ہوں، پاگل۔ یہ جو کہہ رہے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں یا پاگل سا ہو گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ابھی پاگل نہیں ہوئے، ہو جائیں گے کچھ دنوں میں۔ جب ہوں گے تو پھر یہ نہیں مانیں گے کہ میں پاگل ہوں۔ اور انہوں نے پاگل کے ساتھ سا کا لفظ بڑھا دیا، پاگل سا، یعنی ایسا محسوس سا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو، پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ پاگل سے بھی ہو گئے ہیں، یعنی فل پاگل نہیں ہوئے، تھوڑے سے بھی ہو گئے ہیں، تو یہ بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا، جو تھوڑا پاگل ہے وہ بھی پورا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کریں تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کی تیسی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی بات؟ ایک دفعہ لاہور سے کسی کا فون آیا، انہوں نے میری کتاب پڑھی، صبح میں اکثر کال ریسیو کر لیا کرتا تھا، تو ان کا فون آیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کی دوسری شادی پہ کتاب پڑھی ہے، او ہو بڑا متاثر ہوا، بڑی شاندار جاندار کتاب، اور میری تو اتنی اچھی تنخواہ ہے، اور میری بیوی نے تو اولاد بھی روکی ہوئی ہے، 2 بچوں کے بعد مجھے تو اولاد بھی چاہیے، اور یہ وہ، اور میں تو الگ گھر دے سکتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کروں گا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، جب کر لیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تھوڑے دن کے بعد ان کا میسج آیا، یار یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو ان کو میں نے ایک بات بتائی جو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں جو پاگل سے ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کیا ہو جائے گا؟ دیکھو، معاشرے میں جب ایک چیز کی ضرورت ہو تو پھر دیکھو، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، بائی پاس کرنا ہے اس کا، اس کے بغیر ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ یہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ اب لیکن اس مریض کو شوگر بھی ہے، اس کا بی پی بھی ہائی رہتا ہے، تو ڈاکٹر کہیں گے یار شوگر کو کنٹرول کرو، بی پی کو کسی طرح کنٹرول کرو، لیکن بائی پاس سے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ یار چونکہ شوگر کے مریض بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بائی پاس ہوا اور وہ ہوش میں ہی نہیں آیا، ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں، تو چونکہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، فلانے کا بھی، لہذا اس کو بھیج دو۔ ان کو پتا ہے یار بھیجا تو انتقال اس کا یقینی ہے۔ تو یاد رکھو، معاشرہ جو ابھی ہمارا بیمار ہے نا، ایک بیوی والے نظام کی وجہ سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں۔ بیٹی کی پیدائش ایک عذاب بن چکی ہے، کوئی خوش نہیں ہو رہا بیٹی کی پیدائش پر سوائے چند دینداروں کے، ایک عذاب بن چکی ہے۔ کیسے واقعات آ رہے ہیں نا، بچے خوشی نہیں ہوتے ہاسپٹل میں۔ میں نے ایک دفعہ ہاسپٹل میں دیکھا، بھائی لڑکا بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور ایک بڑی عمر کی خاتون اس کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتا چلا جی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں یہ جہالت، اس لیے کہ ایسا معاشرے میں بچی عذاب بن گئی ہے، کیونکہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں، مرد کے پاس آپشن بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب مرد کے نخرے شادی میں بہت ہیں، خوبصورت بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، قد بھی اتنا لمبا ہو، اگر لڑکا اردو اسپیکنگ ہے تو لڑکی بھی اردو ہی اسپیکتی ہو، لڑکا پنجابی ہے تو لڑکی بھی پنجاب سے تعلق رکھتی ہو، لڑکا پٹھان ہے تو لڑکی بھی پٹھان ہو، لڑکے کا قد اونچا ہے تو لڑکی کا قد بھی اونچا ہو لیکن 1 انچ کم ہو، بالکل برابر بھی نہ ہو، تاکہ پتہ چلے یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے۔ تھوڑا سا قد اونچا ہو گیا رشتہ ریجیکٹ، تھوڑا سا قد چھوٹا ہو گیا ریجیکٹ۔ جو سمجھدار لڑکے ہیں نا، جو شادی کے قابل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکی والوں کے لیے ایک عذاب جان بن گیا شادی کرنا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی زیادہ ہے، تو اسلام نے ڈیمانڈ زیادہ رکھی ہے عورت کی، 1 مرد 2 کرے گا 3، اور نیچر نے بھی ایسا ہی، مرد میں زیادہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، عورت جو فطرت پر ہے وہ صرف 1 مرد چاہتی ہے، 1 شوہر ہونا چاہیے اس کا۔ مردوں کی خواہش، تبھی تو مردوں کے واقعات آتے ہیں، ادھر فلانی انٹی سے چکر، فلانی، عورتوں کے ایسے بہت کم کیسز ہوتے ہیں۔ مردوں کے ہر دوسرا آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے، سالیوں کو دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو۔ اگر سالی خشک سالی کا شکار ہے پھر نہیں دیکھے گا، وہ زیادہ ہری بھری ہے، بیگم کو دیکھنا چھوڑ دے گا۔ یہ تو دن رات مردوں کی، کیونکہ فزیکلی ان میں شہوت کیا ہے، زیادہ ہے، تو یہ خود قدرت نے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ زیادہ عورتوں کو سے نکاح کرے۔ اب نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، آپ سب نے 1 رکھ لی، عورت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس عورتوں کو اس عذاب سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرد دوسری شادی پہ آمادہ ہوں، طلاق یافتہ سے کرے، کنواری سے کرے، بیوہ سے کرے، بھائی کرو، تاکہ کل تمہاری بیٹی کو بھی طلاق ہو سکتی ہے، کل وہ اس کی بھی عمر زیادہ ہوگی، کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس کے لیے، یہ سب مسائل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض علماء نے اپنے مریدوں کو منع کیا دوسری شادی سے، کسی بیوہ سے کر رہے تھے وہ، نہیں سکون قلب خراب ہو جائے گا، سلوک کے منازل طے نہیں ہو سکیں گے، سوگنوں کے جھگڑے میں پڑ جاؤ گے، خانقاہ سے بھی شارٹ ہو جاؤ گے، اطمینان قلب بڑی نعمت ہے،
है भाई, इबादत में दिल लगाओ, बस एक बीवी मिल गई उस पर सब्र करो। लेकिन उन्हीं बुजुर्ग की बेटियां जब जवान हुई तो उनके लिए रिश्ता, बोलो भाई, नहीं, वो परेशान फिर रहे हैं अपनी, वो सारा सुकून यहां निकल गया। और उन्हीं बुजुर्ग की मुरीदनियां जो उनसे बैत हैं, कसरत से रिश्तों की तलाश में हैं, उनके सुकून कल्ब का ख्याल, बोलो भाई, नहीं। इस मुरीद का तो ख्याल किया जा रहा है कि ये दूसरी करेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपसे बैत होने वाली जो हजारों औरतें हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, वो शादी के बगैर कैसे सुकून कल्ब के साथ इबादत करेंगी भाई? उनको तो नफ्सियाती बीमारियां भी हो रही हैं, बुराइयों में भी पड़ रही हैं, वो उनका कोई ख्याल नहीं है। मेरे पास खवातीन के पहले बहुत फोन आया करते थे, अब तो मैंने फोन उठाना छोड़ दिया। उनमें बहुत सारी खवातीन कह रही हम फलां बुजुर्ग से बैत हैं, हम अपने उस बुजुर्ग से दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो इनकार कर रहे हैं। उन बुजुर्ग के खलीफा है, फला नेक आदमी है, उनसे हमने कहा दूसरी करा दो, बुजुर्ग ने वहां इनकार कर दिया, खलीफा ने इनकार कर दिया। कह रही है कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, कोई बंदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उन बुजुर्ग के पास अपनी इस मुरीद का कोई हल, बोलो भाई, नहीं। बस उसको मुराकबे मुहासबे कि गुनाह का जब ख्याल आए तो चादर डाल के बैठ जाओ, मुहासबा करोगे जो गुनाह करता है वो बहुत ही गंदा होता है। तो ये नेचुरल नहीं है भाई, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम दिया वो करो, क्यों नहीं करते वो? देखो सहाबा के दौर में ऐसा भी हुआ कि 10,000 सहाबा एक जंग में शहीद हुए, सहाबा ताबईन मिला के, मगर बेवा औरतों का मसला, बोलो ना, नहीं खड़ा हुआ। हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए ना, 4 औरतें बैक वक्त बेवा हुई हैं। किसी एक रिवायत में भी नहीं है कि उनकी शादी के लिए नबी परेशान हुए हों, टेंशन में आए हों, उनके लिए दुआएं मांगी गई हों, अखबार में इश्तिहार दिए हों, धड़ाधड़ उनके निकाह हुए हैं। बल्कि हजरत अस्मा भी थी उनमें, उनका निकाह कैसे हुआ? जैसे ही बेवा हुई है, इद्दत गुजरी है, हजरत अली ने भी निकाह का पैगाम भेजा और हजरत अबू बकर ने भी पैगाम भेजा, और भी कई साहबा ने, क्योंकि हालांकि अबू बकर भी शादीशुदा थे और हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में तो नहीं किया निकाह, लेकिन हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद आपने भी 4 शादियां की। फिर तो सब मैरिड थे, इसके बावजूद क्या कर रहे हैं? निकाह का पैगाम। वहां तो नबी ने किसी को यह नहीं कहा कि यार तुम जिहाद करो, जो मैं गज़वा उहुद में, बदर में, खंदक में हालात देखो क्या हो रहे हैं, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, मुआशी लिहाज से हम चंदे कर रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं बनता और आपको शादियों की पड़ी हुई है। क्यों? वो शहीद हुए तो उनकी बेवा से मैं शादी करूंगा, शादियों की पड़ी हुई है, सुकून खराब कर रहे हो। सोकनों के झगड़े तो उस दौर में भी होते थे। कैसे झगड़े होते? तो खुद उम्महातुल मोमिनीन में हुए झगड़े। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेज दिया। अम्मी आयशा को गुस्सा आया कि मेरी बारी में सोकन ने मुदाखलत क्यों की है, ये हलवा अपनी बारी में नहीं खिला सकती थी। अम्मी आयशा ने सहाबा के सामने वो प्याला लेके जमीन पे मार के तोड़ दिया। अब आप कोई होते और किसी की 2 बीवियां इस तरह करती तो फौरन मेरे पास आता, आपके मशवरे पे दूसरी की, ये प्याले टूट रहे हैं घरों में, हलवे बिखर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ये टेंशन ना लो, सुकून से अपना 1 बीवी 2 बच्चे आराम से हंसी जिंदगी गुजारिए। एक अजाब में डाल दिया मुफ्ती साहब ने। नबी के पास मसरूफियत हमसे ज्यादा थी, आपका जो विजन था वो आलमी था और आपका विजन सिर्फ एक घर है, 2 और हो जाएंगे, एक बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, एक इंजीनियर बन जाएगा, चलो रेडी लगा लेगा, ये 2-4 ही है, यही आपका पूरा कुल कायन, ये विजन ये है। आप इस पे बड़ा इतराते हो, मेरा विजन है और ये मकान बिक जाएगा, बहरिया टाउन में ले लूंगा, बस। ये नबी का विजन पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब करना, और उम्र सिर्फ 23 साल दी गई है इस काम के लिए। उसमें तो एक भी शादी नहीं होनी चाहिए थी आपकी। आप बोलते मैं शादियां करने थोड़ी आ जाऊं, सहाबा को भी मना करते थे, भाई ये काम नहीं करो, तुम अपने विजन को फोकस करो। मगर धड़ाधड़ और सोकनों के झगड़े भी बर्दाश्त हो रहे हैं। तो उन्होंने भेजा हलवा, अम्मी आयशा ने उठा के जमीन पे मार के तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हम होते और हमारी बीवी करती है रख के लगाते चमाट, कहते हैं ना रख के चमाट लगाए। आप मुस्कुराए, साहबा से फरमाया गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, कुछ नहीं होता। उठाया और फिर जब अम्मी आयशा का गुस्सा ठंडा हुआ, फरमाया बर्तन की कीमत अदा कर देना, ठीक है बर्तन की। ये लीडर की सलाहियत है, बर्दाश्त। मर्द को 4 बीवियों की इजाजत अल्लाह ने इसलिए दी है कि वो लीडर है, वो हाकिम है, तो उसे बर्दाश्त है, तहम्मुल है। सारी मजे की जिंदगी नहीं गुजरेगी भाई दुनिया में, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह को ऐसा बंदा पसंद है, बच्चों की टेंशन है, बीवी की टेंशन है, खानदान की टेंशन है, ये टेंशन है अल्लाह देखना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रही? अंग्रेज बन जाओ फिर टेंशन फ्री, एक भी नहीं है, लेकिन वो कमबख्त खुदकुशी से मरता है फिर वो आखिर में टेंशन से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नेचुरल लाइफ यही है। मैं तो इतना, ये तो मेरी इज्जत घर से बाहर है, अब क्या बताएं, घरेलू बातें भी कर लेते, वरना घर में जब जाऊंगा घर वालों की तरफ से ताना कि 6 अंडे बोला था, 1 दही उठा के ले आए,
आलू उठा के ले आए, और मैं घरों में जब जाता हूं तो आलू प्याज टमाटर खुद ही ले रहा हूं, क्योंकि मेरा कोई अभी ऐसा बेटा नहीं है जो बड़ा हो गए घर में सारे काम मुझे खुद ही को करने पड़ते हैं, कोई मुलाजिम नहीं रख सकते। कई दफा दूसरों से काम करवाया, वो मुस्कुराते हुए आलू उठा के ले आता है। मैंने अपने बेचारे लड़के भी बहुत खिदमत करते हैं, मैंने जब भी आलू लेकर आ रहे हैं, पौधे निकले हुए आलू में, मैंने इधर कहा यार ऐसा आलू लाओ जो मुस्कुरा ना रहा हो। कई दफा समझा ना, फटे हुए आलू होते हैं तो वो ऐसी बनता था जैसे मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा यार मुस्कुराता हुआ आलू नहीं, गला हुआ टमाटर नहीं, सेब मंगवाओ वो पता नहीं। तो भाई जब तक आप खुद नहीं खरीदारी करते, वो मंगवाया गोश्त तो उसमें चर्बी चर्बी आ गई, कभी हड्डी आ रही है। जाहिर है वो लौंडे लपाड़े बेचारे जो नए नस्ल, इनको थोड़ी खरीदारी का तजर्बा है। अभी इनके 20 बच्चे होंगे तो इनको पता चलेगा आलू कैसे खरीदे जाते हैं, प्याज कैसे खरीदे जाते हैं। हमें भी नहीं आते थे, हमें भी जब टेंशन आई तो हमें भी आलू खरीदना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो खरबूजा नहीं पता चलता इनको कौन सा उठा के लाना है, आम चौसे के चक्कर में पता नहीं क्या वो इनको पहना देता है, वो उठा के ले आते हैं। भाई नाराज नहीं होना, आप लोग की बुराई बयान कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बड़ी खिदमत गुजार हो, लेकिन अभी आता नहीं है खरीदा, तो मुझे ही करनी पड़ती है। अब जब मैं घूम रहा होता हूँ तो लोग मुझे पहचानते नहीं है। स्टाइल हमारा ऐसा होता है, आलू कितना का टमाटर। अभी कल ऐसा हुआ कि एक पठान होटल पे मैं गया हूँ, जल्दी में भागा ना घर से, तो नाश्ता नहीं किया घर में, भागा क्योंकि मदरसे की देर हो रही थी। रास्ते में एक पठान होटल, 2-3 दफा ऐसा हुआ, उस पठान होटल के में कोयटा होटल है, पराठा बड़ा खानदानी बनाता है। तो मैंने जब वहां पराठा खाया, जेब में हाथ डाला तो बटवा ही नहीं है। अब शादीशुदा आदमी के साथ ऐसे मसाइल बोलो भाई होते हैं। हाथ डाला तो मैंने कहा भाई ये तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। खैर मैंने कहा यार वो पैसे भूला जा, कल दे दूं। उसने कहा चलो कल दे देना, कोई मसला नहीं। अगले कल की बात है, गुज़श्ता कल की, दोबारा गया। मैंने कहा चलो नाश्ता भी इधर ही कर लें, पराठा इसका अच्छा होता है। बैठा, नाश्ता वाश्ता किया, बाहर आने लगा तो उसने कहा कल की बात है, कह रहा आपकी शक्ल मुफ्ती तारिक मसूद से बहुत मिलती है। मैंने कहा मैं वही हूं। कह रहे वो तो नहीं हो आप, लेकिन मिलते उनसे बहुत हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम वही हूं। नहीं माना, कह रहे वो नहीं हो आप, आवाज भी मिलती है, शक्ल भी मिलती है, आप वो नहीं हो। क्योंकि स्टाइल देखा ना उसने, स्टाइल देखा कि यार ये ऐसे जा रहे हैं। और भैया आलू प्याज टमाटर जब लेने निकलोगे तो कोई स्टाइल होगा है भाई, कोई 3 पीस सूट में थोड़ी जाएगा आदमी। तो मैंने कहा भाई मैं वही हूं यार। कह रहा नहीं वो नहीं माना, आखिर तक नहीं माना। हमने कहा भाड़ में जाए तुम, अगर मैं वो निकला तो तुम कौन सा कोई फ्री में पराठे खिलाओगे हमको। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, जा रहा हूं। मुझे कह रहे कार्ड दिखाओ, कार्ड हाँ मुझे कह रहे कार्ड दिखाओ, वही हो। मैंने कहा भाई मैं वही हूं यार, मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं तो शुक्र है बटवा ले आया मैं। कह रहा नहीं वो नहीं माना, आखिर तक नहीं माना। तो मैंने कहा ना मान भाई, तोरे मानने से क्या हो रहा है, ठीक है अब ये वाकया सुनेगा तो शायद मान जाए। तो अल्लाह ताला को मेरे भाई बाल बच्चों वाला आदमी, घरेलू आदमी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यही है। हजरत अबू हुरैरा के 19 बच्चे थे, समझ रहे हो। खालिद इब्न वलीद के 40 बेटे तो मैदान जंग में शहीद हुए हैं। ये 2-2 बच्चे तो गोरों से आए हैं। ये हमारा कल्चर थोड़ी है, औलाद भी हो, उनसे मोहब्बतें भी मिलती हैं और याद रखो टेंशन कम मिलती है, सुकून ज्यादा मिलता है, सुकून ज्यादा मिलता है। तो अल्लाह को यही स्टाइल पसंद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ घरों में ये भी होता था, ऐसा हो गया, बर्तन तोड़ दिया, और भी बड़े वाकयात मिलते हैं सीरत में। तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था मेरे भाई, अब अगर इन टेंशनों से बच के आप शादी करना छोड़ दोगे तो जो बड़ी टेंशनों में औरतें आ रही हैं ना वो ज्यादा बड़ी हैं, और उसमें कल आपको भी अपनी बहन बेटियों के मामले में भुगतना पड़े। किसी बेचारी को तलाक हो जाए, अज़ाब जान बन जाती है। फिर शादियां जो हो भी रही हैं गैर कुफू में, गैर कुफू का मतलब महर तो खत्म ही हो गया, 5,000 महर, 25,000 महर, ये आजकल महर चल रहे हैं। अरे भाई वो तुम्हारी तनख्वाह 25,000 नहीं है यार, कम से कम 2 महीने की तनख्वाह तो दो महर में। 25,000, 20,000, 5,000, ये औरत की औकात हो गई है हमारे मुआशरे में, ठीक है ना। अरब में जाके देखो पूरे पूरे तेल के कुएं लिखवा रहे होते हैं। मैं नहीं कह रहा इतना गाढ़ा महर रखें, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो जेब से निकले। महर का तो मकसद है कि आपकी जेब से पैसा निकलेगा तो बीवी की कदर होगी कि भाई फ्री में नहीं मिली, कुछ खर्चा हुआ है। महर 20,000 और जहेज 3 लाख का, 4 लाख का, वो कम से कम जहेज वो पहले से घर में आ जाता है। बेड़ा गर्क कर दिया इस एक बीवी वाले निजाम ने हमारे मुआशरे का। और तलाक हो जाए फिर उसके लिए वो गैर कुफू में शादियां, लड़कियां MSc की है, 8वीं पास लड़के से शादी हो रही है उनकी। मैंने खुद नहीं पढ़ा है, डॉक्टर लड़की की शादी 8वीं पास से कराई, जाहिर है फिर वो नहीं चल पाती, तलाक हो जाती है। फिर उल्टा आजकल ये भी चल रहा है कि बीवी जॉब वाली चाहिए, क्योंकि मर्द के पास ऑप्शन बहुत है, उसे पता है जॉब वाली भी मिल जाएगी, आधा तुम कमाओ आधा मैं। और कुछ वक्त के बाद ये होगा कि पूरी तुम कमाओ, मैं सिर्फ बैठ के पेड़े खाऊंगा। फिलिपाइन में यही हुआ था कि पहले औरतों ने भी कमाना शुरू किया, मर्दों ने भी, उसके बाद मर्द अपाहज हो गए। अब फिलिपाइन में औरत कमाती है, मर्द खाता है।
समझ रहे हैं? दुबई में जाके देखो फिलिपीनी औरतें भरी हुई होंगी, मर्द शार्ट होंगे। मैंने वहां इंटरव्यू लिया, मैंने कहा ये औरतें या क्या? उन्होंने कहा इनकी मियाँ घर बैठ के खा रहे हैं, यहाँ से कमा कमा के भेजती हैं। तो यही हो जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं आ रही तो रहने दो, जैसे चल रहे हो उसी तरह चलते रहो। तो भाई मुआशरे में एक अजाब है, बुराई है, उसको खत्म करने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी यही है कि करो ऐसी की तैसी, जो होगा देखा जाएगा। नहीं आ रही बात? नहीं आ रही होती तो फिर करके आए होते कुछ। और मैंने वो लाहौर वाले को जो समझाया, मैंने कहा भाई देख, मैं गारंटी देता हूं तू दूसरी शादी करेगा, तेरी बीवी तुझे गोली नहीं मारेगी इंशाअल्लाह, तेरे साले तुझे ठुकाई तो लगाएंगे मगर जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन पे शोकन बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसको बेवा होना कैसे बर्दाश्त कर लेंगे वो? क्या ख्याल है? तो मैंने कहा हाथ पांव भी नहीं टूटेंगे, उम्मीद ही यही है। और अगर हाथ पांव तोड़ने की बात है तो आप भी तोड़ दो, इतना तो किसी को इजाजत नहीं है ना कि शादी करे तो हाथ पांव तोड़ दे। मैंने कहा आप भी तोड़ दो। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा 6 महीने की जेल है। मैंने कहा वो बीवी अगर केस करेगी तो 6 महीने की जेल है। वो बीवी अगर बहुत ही बेवकूफ है कि अपने शोहर को बंद करा रही है, तो फिर मेरे भाई आप अंदर चले जाओ और ऐसी बीवी को छोड़ दो। ये रखने के काबिल, बोलो भाई, नहीं है, ये रखने के काबिल नहीं है। तो किसी ऐसी औरतों से करो जो रखने के काबिल हैं, ठीक है ना? तो उसने कहा बच्चों का क्या होगा जब फड्डे होंगे, ये होगा फलाना होगा, बच्चों का क्या? हाँ, तो मैंने कहा कर लो तो फड्डे होंगे। मैंने कहा फड्डे बर्दाश्त करो, जिस हद तक बर्दाश्त कर सकते करो, जब फटने लगो तो घर से शार्ट हो जाओ, भाग जाओ। बहुत पाकिस्तान में जगह हैं भागने के लिए, कहीं भी जाके रह लो, तबलीग में निकल लो 40 दिन के लिए। मैंने तुम लोग लड़ो, मैं जा रहा हूं, खर्चा देके राशन डाल के निकल लो। कह रहे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर कहीं जाओ, वहीं से ऑफिस चले जाओ, वहीं से मदनी मस्जिद जाओ, वहां से दीन भी सीखने को मिलेगा। बोलो भाई जब तुम सही हो जाओगी तो मैं आ जाऊंगा। और 2 कर लिए, फड्डे हो रहे हैं, उसका हल ये भी है कि तीसरी भी कर लो। जब प्यार किया तो डरना क्या भाई? क्या ख्याल है भाई? तो शराफत का दौर नहीं है, जिना करने वाले पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। वही जो आपको दूसरी शादी से मना कर रहे हैं ना, उन्हीं की बहन बेटी बेवा हो जाए तो वो दूसरी पे दे देते हैं, सही है ना? वो दे देते हैं। तो आप करो, होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो इस जज्बे के साथ करोगे तो पागल नहीं होगे। आपने शादी की पेड़े खाने के लिए, तो फिर पागल हो जाओगे आप। एक साहब आए, इंजीनियर थे, मुझे कहने लगे कि मैं दूसरी करना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? कह रहे मेरी बीवी घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन धोने का टाइम नहीं है, तो मैं एक और लाना चाहता हूं ताकि वो बर्तन धोए। मैंने कहा थोड़ा मैं भी उसमें इजाफा कर देता हूं। मैंने कहा आपकी बीवी पांव दबाती होगी, सर दबाने का हाथ नहीं पहुंचता होगा, तो एक और ले आए, वो क्या दबाएगी? सर दबाएगी। मैंने कहा आपने इंजीनियरिंग कहां से की है? उसने पता नहीं क्या स्वीडिश से या कौन से इदारे से। मैंने कहा यार इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि आप किस जज्बे से शादी कर रहे हो? एक झाड़ू लगा रही है तो सोकन आके बर्तन धोएगी और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। मैंने कहा वो बर्तन फोड़ेगी आपके ऊपर, बेलन से सर फोड़ेगी आपका। साथ रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलग घर लेके दो उसको, और फिर ये दिमाग से निकाल दो कि वो कपड़े धोएगी और खाना पकाएगी। बोलो भाई बस शादी हो गई, औलाद मिल गई, बहुत है, अब सुकून से चुप करके रह ले, बस काफी है। दूसरी 4 शादी में ये भी फायदा होता है कि बीवी अगर खिदमत ना भी करे, इंसान गुजारा कर लेता है। समझ रहे हैं ना? वो कहता है बस उसको सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है लड़ो नहीं, बस बाकी जो कहोगी मैं पूरा करके दूंगा। तो ये इंसान को जर बड़ा हो जाता है। कह रहे यार उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला होता है फड्डेबाजी ना हो। जबकि एक बीवी होती है ना तो उसको बांदी बना के रखते हैं लोग, सारे काम उसी से लेते हैं बहुत ज्यादा। आप देखें ना, जरा सी उसमें कोई फॉल्ट होगा तो तलाक दे देते हैं। तो 4 बीवियों में ये बड़ा फायदा है कि आपका जर बड़ा हो जाता है। आपका भाई बस सुकून से रह लो, ठीक है ना? बस लड़ो नहीं, बस इतना काफी है। मैं जब आया करूं तो सलाम किया कर लिया करो इज्जत के साथ। तो इस पे भी आदमी आ जाता है आराम से। तो आप कभी भी ऐशो इशरत की नीयत से ये काम ना करें। आप जब करें तो मुआशरे में एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की नीयत से ये काम करें। और अल्लाह का शुक्र है बहुत लोगों ने अब की हैं शादियाँ। मेरे पास तो ख़वातीन के भी फ़ोन आते हैं कि मुफ्ती साहब अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपके बयानात की वजह से मुझे भी शोहर की नेमत मिल गई है। मैंने एक वाक़या सुनाया था ना, मैं रोड पे जा रहा था, खातून ने गाड़ी ड्राइव करती हुई आ रही थी, एकदम गाड़ी रोक के उतर के आई भागती हुई। मैं डर गया, पता नहीं क्या है। तो बड़े जोर से बोला आप मुफ्ती तारिक मसूद शुगर। उन्होंने पहचान लिया, वो तो पहचान ही रहा था, वो कोयटा होटल वाला, उन्होंने पहचान लिया। आप मुफ्ती साहब है? मैंने कहा जी, मैं आपको कब से तलाश कर रही हूँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। कह रही मुझे तलाक हुई थी, 2 साल हो गए थे, घर बैठे बैठे कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, और आते भी थे तो बुढ़े बुढ़े लोगों के जो उम्र में कई गुना ज्यादा है, बेरोजगार लोगों के, जिनसे ये था कि और मुसीबत में ना पड़ जाए, कोई ढंग का नहीं आया। तो एक साहब आपका बयान सुनते थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे खानदान के थे, उन्होंने दूसरी शादी के लिए मुझे निकाह का पैगाम भेजा और मैं उनके साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई गुजार रहे। उन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी पहली बीवी से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो उसका भी बड़ा ज़र्फ है, लेकिन ऐसा
आम तौर पे होता नहीं है, उनके यहाँ हो गया ग्रेवी में, उनको पहली वाली बहुत ही अच्छी मिल गई होगी, आप लोग खुशफहमी में मुब्तला ना हो। लेकिन वो तो ऐसे बहुत केसेस हैं जिन खवातीन ने मेरा शुक्रिया अदा किया फ़ोन करके। तो ये मुआशरे की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत होगी उसको समझ में आएगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगी, आपके अब्बा को ज़रूरत नहीं है वो आपकी मुखालफत करेंगे, आपकी अम्मा को ज़रूरत नहीं है वो आपकी मुखालफत करेंगी, आपकी पहली बीवी को ज़रूरत नहीं है वो आपकी मुखालफत करेंगे, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है वो अब्बा का गिरबान पकड़ के घुमाएंगे। ज़रूरत आपको है और उस खातून को है जो आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार है। वो दूसरी बनने के लिए तैयार होना इसकी अलामत है, उसे ढंग का कंवारा नहीं मिल रहा, वरना वो कंवारे से करती ना। भाई मैं खवातीन को कहता हूं कि अगर कोई कंवारा मिल रहा है तो दूसरी पे मत जाओ, क्या जरूरत है अपने आप को आजमाइशों में डालने की। अगर कोई छड़ा छाड़ मिल रहा है कंवारा तो कंवारे को तरजीह दो, नहीं मिल रहा तो सारी जिंदगी बैठे रहने से बेहतर है कि दूसरी वाले से कर लें। इसी तरह मैं लोगों से कहता हूं अपनी बेटियां कंवारों को दो, शादीशुदा को ना दो। अगर नहीं मिल रहा कंवारा तो फिर घर बिठा के बूढ़ा करने से बेहतर है दूसरी पे दे दो, तीसरी पे दे दो। कोशिश यही करें कंवारा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप कोशिश करें कि ज्यादा निकाह करें, लड़की वाले कोशिश करें कंवारा मिले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं मिल रहा तो भाई दूसरी वाली से कर लो, तीसरी। तो हजरत अस्मा का वाक़या सुना के बात खत्म करता हूं। हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां बैक वक्त बेवा हुई, उनमें एक अस्मा भी थी। हजरत अबू बकर ने भी पैगाम भेजा, हजरत अली ने भी पैगाम भेजा। हजरत अस्मा ने हजरत अली के रिश्ते का इनकार कर दिया उम्र कम होने की बेस पे। किस बेस पे? उम्र कम। अबू बकर की उम्र उनकी उम्र से मैच कर रही थी। पता चला हजरत अली अपने से उम्र से ज्यादा खातून को निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। आई बात समझ? जब अबू बकर से हजरत अस्मा का निकाह हो गया, जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ है तो हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेजा, वो कबूल कर लिया उन्होंने, फिर हो गई शादी। हजरत अस्मा जो हजरत जाफर तैयार की बेवा थी, हजरत अली से उनकी तीसरी दफा शादी हुई है। तो अरब में ऐसा बहुत होता था, एक औरत बेवा हुई दोबारा शादी हुई। खुद मर्दों के पैगाम आते थे, उनको तलाश नहीं करनी पड़ती थी, रिश्ता तलाश नहीं करना पड़ता था उनको। हमारे यहाँ तो लड़कियां रिश्ते तलाश कर रही हैं। और इसके बहुत वाकयात हैं कि इधर औरत को तलाक हुई, बेवा हुई, उधर धड़ाधड़ निकाह के पैगाम शुरू। तो हम नहीं देखते कि नबी ने कोई ट्रस्ट बनाया हो कि इतने लोग शहीद हो गए, इनकी बेवा कहाँ जाएंगी। ना 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 भाई, क्योंकि आपने फरमा दिया, अल्लाह ने मेरे दिल में निकाह की रग़बत डाल दी है, तो साहबा समझ गए कि हमें भी निकाह में कसरत से काम लेना पड़ेगा, गुर्बत से नहीं डरें, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया निकाह करो। फ़कीर हो गए, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इंतज़ाम करेगा इंशाअल्लाह। करो, बच्चे भाग गए वापस आ जाएंगे, भाग के इंशाअल्लाह ज़मीन से बाहर, चांद पे अभी इंडिया गया था, करीब पहुँच के वापस आ गया, तो वो इतने बड़े बड़े साइंसदान नहीं पहुँच सके, तो आपके बच्चे भी भाग के कहीं नहीं जाएंगे, रहेंगे इसी दुनिया में। सही है। बाकी खवातीन बाज़ दफ़ा बच्चों को बिल्कुल ही मार्केट से शार्ट कर देती हैं, तो वो मिलने भी नहीं देती। तो कानूनी तरीका इख्तियार करो, जिस तरह भी कर सकते हो, फिर भी नहीं होता तो सब्र करो और बच्चे पैदा कर लो धड़ाधड़, ठीक है ना। लोग कहेंगे हाय हाय बच्चों का बर्बाद कर दिया जिंदगी शादी के चक्कर में। आपने बर्बाद नहीं की, उस औरत ने बर्बाद की है बच्चों की जिंदगी। उनका गिरबान क़यामत के दिन वो बच्चे भी पकड़ेंगे और अल्लाह भी उससे पूछेगा, आप तो शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हो। और बच्चे भागेंगे नहीं, आ जाएंगे एक दिन इंशाल्लाह, बड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे। समझ रहे हो? नहीं आए तो भाड़ में जाएं ऐसे बच्चे जिनको पता है कि हमारा बाप मौजूद है और फिर भी मिलने की कोशिश ना करें। तो ऐसे बच्चों का क्या करना है, दूसरे बच्चे पैदा करो। इतने बच्चे इंशाल्लाह हो जाएंगे कि आपको अपने वाली वारिस और बहुत सारे मिल जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह रहे मुआशरे से डर के तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुआशरा और तबाही की तरफ जाएगा और मुआशरती नुकसानात तो होंगे, आपकी ज़ात को भी बड़े नुकसानात का खतरा है। लेकिन मैं बार बार बता दूं, ये काम है बर्दाश्त का, तहम्मुल का, जज्बाती लोगों का काम नहीं है। समझ रहे हो कि एकदम हुल्लड़बाजी में होगा, हो ये मैं ये कर दूंगा, मैं फौरन तलाक़ें निकाल दूं धड़ 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 करके, पागलों जैसी हरकतें। हमारे एक जानने वाले ने 2 शादियां की, दोनों बीवियों के जब फड्डे शुरू हुए, गुस्से में आके दोनों को 3 तलाक़ें निकाल दी उन्होंने। तो ये पागल लोग हैं। भाई आप में तप्पड़ नहीं था तो फिर ये काम बोलो भाई नहीं करो, फिर किसी की जिंदगी बिला वजह बर्बाद मत करो। तप्पड़ है, बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ओवरटेक वही करे जिसमें तप्पड़ है, वरना पीछे आराम से खरामा खरामा चलता रहे। ठीक है ना। तो जिसमें तप्पड़ है भाई वो काम करे और तप्पड़ पैदा करो। और नहीं है, एक साहब दिल के मरीज थे, हार्ट अटैक हो चुका था उनको। वो जब उन्होंने कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मैंने कहा आप ना करें। मैं मना भी करता हूँ बहुत से लोगों को, मैंने कहा एक हो चुका है, जब टेंशन होगी तो वो दोनों बेवा होंगी एक ही टाइम पे। मैंने कहा आप, बहुत से लोगों को मैंने मना किया, उस इंजीनियर साहब को भी मैंने मना कर दिया था जो कह रहे थे ना 2 घर में होंगी पाँव दबाएंगी। मैंने कहा भाईजान आपके बस की बात नहीं है, जब पिटेगा दोनों से पिटेगा तो फिर बोलेगा यार ये क्या हो रहा है। तो आपका नजरिया ही ठीक नहीं है। मैंने कहा आप दूध जलेबी खाने के लिए कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में नहीं होता, बड़े में कहाँ से होगा।